Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Okay, let us see. Curriculum determinants. In the process of curriculum making, in the curriculum development, we have to consider some determinants, and what are those determinants? Let us see. As I will cover only the philosophical determinants today, let us see what will include, what are the broad determinants of curriculum making. The first one is philosophical determinants. We have to consider the philosophical aspect of curriculum making. So what are the functions will include in that process while making the curriculum in terms of, or when to look after the curriculum or philosophical part, what are the functions which we have to look after? It may be the functions which is the starting point in curriculum development. In the starting point, we can take the help of philosophical determinants, the philosophy which had already developed, and what are the suggestions has been given by different educationists that we can include in our curriculum at the starting point or at the end, or in the function of interdependent with each other functions in curriculum development. Or we can include one or two more philosophies which are beneficial for our students. That type of the type of philosophical suggestions, philosophical determinants can also we can include in our curriculum. जो भी different educationist लोगों ने philosophy दिया है, all which is beneficial or which is related to different जो thought process है उसको develop करने के लिए हम philosophy का उसमें include कर सकते हैं. यहाँ पे एक definition है given by John Dewey. उन्होंने क्या बोला था? Education is the laboratory in which philosophic distinctions become concrete and are tested. जो एजुकेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लेबोरेटरी होता है जहाँ पे हम डिफरेंट फिलोसॉफीज के डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट फिलोसॉफी डिस्टिंक्शंस को वी यूज्ड और वी टेस्टेड देम इन दैट एजुकेशनल लेबोरेटरी. कॉन्क्रीट या फिर जो भी चीज होता है जो फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस, वी यूज टू टेस्ट देम इन आवर एजुकेशनल लेबोरेटरी. सो that is the definition given by John Dewey. उसके बाद देखते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल पार्ट, सो वी हैव टू इंक्लूड सर्टेन इंपॉर्टेंट जो भी कंटेम्प्रेरी जो भी फिलोसॉफीज ऑलरेडी है उसको हमको इंक्लूड करना होगा, एंड वी हैव टू लुक आफ्टर दैट कि करिकुलम में उनका इंपॉर्टेंस क्यों है एंड करिकुलम कैसा होना चाहिए, व्हाट दे हैव गिवन द आइडियाज. सो लेट अस सी, एज वी ऑलरेडी नो कि फिलोसॉफी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि फिलोसॉफी का मतलब ही होता है द थॉट प्रोसेस एवरी थिंकिंग, किस तरह से एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होता है लोगों का, तो वो हो जाता है फिलोसॉफी ऑफ थॉट. तो उसमें हम लोग फर्स्ट जो इंक्लूड करेंगे दैट विल बी आइडियलिज्म. आइडियलिज्म वाज द ओल्डेस्ट जो फिलोसॉफी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. तो आइडियलिज्म फिलोसॉफी में एजुकेशन या फिर करिकुलम में क्या दिया गया, उसका मेन थीम क्या था आइडियलिज्म, वो देखते हैं. पहले तो देखना होगा हु हैड डेवलप्ड दिस आइडियलिज्म थ्योरी, एज वी हैव नो दैट इट इज अ ओल्ड थ्योरी. सो देखते हैं व्हिच हैज बीन गिवन बाय Plato. So it was a very old philosophy, idealistic philosophy. So let us see what idealism had told us. That idealism philosophy believed in, or they agrees that the highest aim is the search for truth and enduring values. To develop the values, to find out the truth is the main theme or main the ideas or main philosophy of idealisms. और you can remember with the short form कि जैसे कि idea है, तो आइडियलिज्म्स का मेन फिलोसॉफी जो था, दे बिलीव्ड इन द आइडियाज या फिर जो भी लोगों से जो भी थिंकिंग आता है, जो लोगों का आइडियाज रहता है, जो ट्रू एक्सपीरियंस, जो एंड्यूरिंग जो वैल्यूज होता है, दे प्रीफर इन दैट टाइप ऑफ टीचिंग. तो प्लेटो और क्या बिलीव करता था? प्लेटो बिलीव दैट आइडियाज कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स एंड अ मीनिंगफुल होल. मतलब जो मैंने अभी बोला कि आइडियाज ही मेन, जो आइडियाज को ही उन लोगों ने फोकस किया था कि आइडियाज कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. जो भी कॉन्सेप्ट या नॉलेज या फिर स्कूल में जो सिलेबस रहता है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू द आइडियाज सो दैट इट कैन रिलेट और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड उसका एक मीनिंगफुल होल हो, ताकि उसको समझ में आए इन इजी वेज. जो स्टूडेंट्स का जो आइडियाज है उसको डेवलप करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए उस तरह से बोला था. जैसे कि ट्रुथ थ्रू रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप करना, स्टूडेंट्स का इंट्यूशन डेवलप करना, रिलीजियस रिविलेशंस, क्वेश्चन भी उस दिन मैंने पूछा था एमसीक्यू का कि रिलीजियस मॉरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है in the idealism philosophy. Apart from that, idealist educators prefer a curriculum that relates ideas and concept to one another. तो वही जो मैंने अभी बोला कि करिकुलम में
ज़्यादातर प्रेफ़रेंस दिया गया है टू द आइडियाज़ ऑफ द स्टूडेंट्स टू डेवलप द आइडियाज़, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर जो क्रिएटिव, मॉरल डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़, रिलीजियस, इस तरह के चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया है आइडियलिज़्म फिलॉसफी में। उनमें सपोर्टर थे कांट एंड हेगल्स। देन हम लोग देखते हैं द सेकंड philosophy which has also a very important impact, that is called as realism philosophy। तो realism philosophy का मेन जो आइडिया या फिर उनका जो फिलॉसफी था वो क्या था, टू जैसे कि आइडियल, अगर रियलिज्म के बारे में बोलेंगे तो उसको किसने दिया था, इट वाज द एरिस्टोटल, व्हिच ऑफ्टन लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के साथ ऑफ्टन वी रिलेट या फिर हम एरिस्टोटल को रिलेट करते हैं और हम लोग लिंक करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म फिलोसॉफी। अनदर ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ थॉट, जो भी स्कूल्स ऑफ थॉट थे उनमें हम रियलिज्म को भी अगर एरिस्टोटल ने दिया है उस हिसाब से मानते हैं। रियलिस्ट व्यू द वर्ल्ड, जो रियलिज्म था वो वर्ल्ड को किस तरह से देखता था, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैटर। पीपल कैन कम टू नो द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड देयर रीजन। जो भी हम लोग देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में है, जो मतलब रियलिज्म वर्ड से ही तुम लोग पता कर सकते हो कि रियल, REL, रियल से क्या मालूम पड़ता है, जो है, जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो मैटर है, उससे जब हम लोग कुछ सीखते हैं, दैट विल कम अंडर रियलिज्म। आइडिया का क्या काम था, आइडियाज को मीन्स जो लेटेंट या फिर एक कंपैरिजन चार्ट से भी हम लोग समझ लेंगे कि आइडियाज में आइडियाज को प्रेफरेंस दिया गया। रियलिज्म में रियल जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड में मैटर है, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सेंसेस से हम लोग या फिर थ्रू रीजन हम लोग कुछ सीख रहे हैं, that will come under realism philosophy। Then Aristotle also believed that everything had a purpose and that humans purpose is to think। तो वही अरिस्टोटल भी बिलीव करते थे हर एक जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ पर्पस होता है। उसी पर्पस के वजह से हम लोग जो भी हम लोग सोच पा रहे हैं या फिर हम थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे, अगर कंपेयर करें, लाइक आइडियलिस्ट आल्सो रियलिज्म स्ट्रेस द करिकुलम कंप्राइजिंग सेपरेट कंटेंट एरिया सच एज हिस्ट्री एंड जूलॉजी। हिस्ट्री सब्जेक्ट को, जूलॉजी सब्जेक्ट को जो दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी पास इवेंट है, जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट टाइप ऑफ कंटेंट मैटर बोथ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म हैज गिवन स्ट्रेच। देन also like idealist, realist ran the most general and abstract subject at the top of the curriculum hierarchy। जितने भी different general subject या फिर abstract type of subjects, उस तरह का सब्जेक्ट को करिकुलम में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया अकॉर्डिंग टू रियलिज्म फिलोसॉफी। उसके बाद देखते हैं हम प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी। प्रैग्मेटिज्म से मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगी उसका किस तरह से याद रखोगे। तो प्रैग्मेटिज्म देख लेते हैं उसको क्या माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटलिज्म। इट इज बेस्ड ऑन चेंज, प्रोसेस एंड रिलेटिविटी। प्रैग्मेटिज्म को तुम लोग ऐसे ही भी याद रख सकते हो, जो प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी को। इसीलिए इसको अनदर नेम क्या है, इट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज, या फिर रिफर्ड हम कर सकते हैं एज एन एक्सपेरिमेंटलिज्म। एक्सपेरिमेंट अगर कुछ करना है तो क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस, द इंडिविजुअल को प्रेजेंट रहना चाहिए, उसको कुछ एक्टिविटी करना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव प्रोसेस होता है। तो प्रैग्मेटिज्म इज बेस्ड ऑन चेंज, प्रोसेसेस एंड रिलेटिविटी। क्या रिलेशन है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, दैट टाइप ऑफ। तो where idealism and realism emphasize subject matter, pragmatism constructs knowledge as a process in which reality is constantly changing। तो एक एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रियलिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगेन वी ऑब्जर्व, कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया, अगेन ऑब्जर्व दैट सिचुएशन, उसके बाद हमको एक दूसरा रिजल्ट मिला। तो प्रैग्मेटिज्म क्या बिलीव करता है, फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, इट बिलीव्स इन चेंज। चेंजेस कॉन्स्टेंटली चेंजेस होता रहता है। जो भी प्रोसेस हम लोग लर्न कर रहे हैं या फिर जो सीख रहे हैं, दैट इज जो रियलिटी है, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लर्निंग ऑकर्स एज द पर्सन एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने बोला लर्निंग बाय डूइंग, या फिर कुछ प्रॉब्लम दे दिया स्टूडेंट्स को, अगर जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी को इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कूल में, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल एंगेज द स्टूडेंट्स इन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, जहाँ पे विच इज ट्रांसफरेबल टू अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। जहाँ पे क्या होता है, उसी एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स लोग और नए नए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीख जाएंगे। उसके अलावा भी प्रैग्मेटिज्म जो उन्होंने बोला कि इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब बोथ द लर्नर एंड द लर्नर्स इन्वायरमेंट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लर्नर को क्लासरूम के अंदर सिखाया कुछ विद द एक्टिविटी, लेबोरेटरी में हम लोगों ने कुछ सिखाया, फील्ड में कुछ सिखाया, तो एवरी लर्नर्स का जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स एज लेवल, मैच्योरिटी लेवल,
उसके साथ इन्वायरमेंट भी को भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माना गया है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा यूज होता है, वाई, कैसे, अ, कैसे हुआ, हाउ कम एंड व्हाट इफ, या फिर अगर इस तरह का है तो अगर हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ अलग तरीके से सीखें तो और क्या होगा। ये सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है देन व्हाट, हु एंड और व्हेन। सिर्फ ओनली जो थियोरिटिकल नॉलेज है उसी में सीमित नहीं है प्रैग्मेटिज्म। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि प्रैग्मेटिज्म प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, किस तरह से हम वर्किंग करके सीख सकते हैं, एंगेज आवर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हाउ कम एंड व्हाट इफ को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर pragmatism philosophy का जो education is great educational pragmatism was, we have to say about John Dewey. So he was a supporter of pragmatism philosophy। इसीलिए Dewey के जो भी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो लर्निंग बाय डूइंग, प्लेइंग मेथड, इन सबको इम्पोर्टेंस दिया गया था अकॉर्डिंग टू हिम। सो दैट्स व्हाई द प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका, इस फिलोसॉफी का हम लोग अभी स्कूल्स में भी डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज में हम लोग देखते हैं, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में या फिर डिफरेंट ह्यूमन कंडीशन, सोशल इन्वायरमेंट कुछ सिखाना है, इस तरह के चाइल्ड के डिफरेंट स्किल्स को डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी। एंड द लास्ट फिलोसॉफी वी हैव टू कंसीडर द एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी इन टर्म्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी वो था, इट वाज डेवलप्ड इन, जैसे कि एग्जिस्टेंस यूरोपियन फिलोसॉफी था, दैट वाज ओरिजिनेटेड अर्लियर बट बिकम पॉपुलर कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इट वाज पॉपुलर। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म के सपोर्टर के बारे में बोलेंगे तो इन यूएस एजुकेशन में हमको इन लोगों का नाम लेना होगा, ग्रीन्स, देन जॉर्ज, देन वेंस। दे आर द वेल नोन एग्जिस्टेंशियलिस्ट who stress individualism में stress किया and personal self fulfillment में they have given the stress। तो existentialism philosophy किसमें बिलीव करता है, टू डेवलप द इंडिविजुअल। एग्जिस्ट कौन कर रहा है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो भी इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ फुलफिलमेंट मीन्स यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है टू द पर्सन, कि जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी पर्सन है लर्निंग करेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग करिकुलम के बारे में बोलेंगे तो करिकुलम में जो अभी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है या फिर इलेक्टिव जो सब्जेक्ट रहता है उसमें क्या दिया गया है, इट इज गिवन इंपॉर्टेंस टू द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के नीड के हिसाब से दे कैन चूज देयर जो भी सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है, they can choose that subject and which will help in the individualism process। तो existentialism को उस तरीके से याद रख सकते हो, exist। then apart from that हम लोग देख लेते हैं कि पीपल एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी क्या बोलता है, कि पीपल कॉन्टिन्यूअसली मेक चॉइस एंड देयर डिफाइन देमसेल्फ। हम इंसान कॉन्टिन्यूअसली हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस करते हैं। सो in the curriculum process also, in the learning process also, the students or the children should give that importance to make choice so that they can learn what they choose to be, या फिर जो वो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो क्या डेवलप करेगा, इट विल डेवलप देयर ओन एसेंस एंड सेल्फ आइडेंटिटी। इसीलिए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में अभी क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। देन उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म एडवोकेट्स दैट स्टूडेंट्स बी फ्री टू चूज हाउ एंड व्हाट दे स्टडी। जो भी स्टूडेंट जो चूज करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है, it should be given all freedom to the students or to the learner। So that's why existentialism curriculum भी क्या प्रीफर करता है, to they prefer to give the experience and subject that lend themselves to individual freedom and choice। तो इंडिविजुअल ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन में लर्नर्स को, या फिर करिकुलम को इस तरह से एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि वो करिकुलम डल ना लगे स्टूडेंट्स को, उससे एक्सपीरियंस गेन कर सके इन अ फ्री वे, सो दैट देयर दे कैन डेवलप themselves। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया बिकॉज टू डेवलप द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ that type of skill to cultivate self expression, या फिर portray the human condition to develop the human condition, या फिर any situations involving choice, that type of subjects are given important। या फिर different examples are there, जैसे कि literature type of subject, drama, film making, music, ये सब कुछ क्या करता है, it helps in the development of emotions, feelings and insight। so these all will come under existentialist thinking। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा आज आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एक्जिस्टेंशियलिज्म। अभी हम लोग एक कंपेयर चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर।
So here you can see all of the 4 philosophy, their reality, knowledge, values, teachers role क्या होता है, emphasize on किस में लर्निंग में कौन सा emphasize किया गया है, कौन सा करिकुलम, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो फर्स्ट आइडियलिज्म में क्या दिया गया, स्पिरिचुअल, मॉरल और मेंटल अनचेंजिंग को जो रियलिटी उसमें प्रीफर किया गया। नॉलेज में रीथिंकिंग एंड लेटेंट आइडियाज, जो मैंने बोला आइडियाज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग। वैल्यूज में एब्सोल्यूट एंड इटर्नल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया गया। टीचर्स का रोल कैसा होना चाहिए, अगर आइडियलिज्म फिलोसॉफी में टीचर्स को स्टूडेंट्स के जो भी आइडियाज है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको डेवलप करना चाहिए। लेटेंट जो आइडियाज है, जो छिपा हुआ है आइडियाज, कॉन्शियसनेस, दैट टाइप ऑफ मॉरल या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स टाइप या फिर उनका जो लेटेंट नॉलेज है उसको डेवलप करना चाहिए। इम्फेसाइज ऑन लर्निंग में क्या दिया गया, रिकॉलिंग करा सकते हैं टीचर, नॉलेज एंड आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये सब एम्फेसाइज ऑन लर्निंग दिया गया है आइडियलिज्म से। करिकुलम कैसा होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, क्लासिकल, लिबरल, आर्ट्स, हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी टाइप सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं रियलिज्म का, रियलिटी में क्या था, बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, जो भी रियल है, मैटर जो दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव एंड कंपोज्ड ऑफ मैटर, ऑल विल कम अंडर रियलिज्म। कंसिस्ट ऑफ सेंसेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, जो भी सेंस से हम लोग सीख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ऑल विल कम अंडर रियलिज्म। वैल्यूज में आएगा एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ, नेचर का जो भी लॉ है, अकॉर्डिंग टू दैट रियलिज्म्स वैल्यूज आर डिपेंडेंट। टीचर का रोल क्या होगा, टू कल्टिवेट रैशनल थॉट, रैशनल थॉट मीन्स प्रैक्टिकल थॉट, और भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टू डेवलप द मॉरल एंड स्पिरिचुअल लीडर, टू बी एन ऑथोरिटी, किस तरह से एक ऑथराइज्ड हो सकता है, ऑथोरिटी हम डेवलप कर सकते हैं अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। Exercise the mind, emphasize on exercise को emphasize किया, logical and abstract thinking। then curriculum में same as realism, idealism में हम ज़्यादा difference नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे arts and science, hierarchy of subject, humanist and scientific subject का भी inclusion किया है। because science क्यों यहाँ पे include किया, because that is the science हम लोग क्या मानते हैं, एक real या फिर जो practical subject होता है, जो reality होता है, that's why। pragmatism में हम क्या देखेंगे, reality interactive of individual with environments always changing, जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, साइंटिफिक मेथड को इंपॉर्टेंस दिया गया। सिचुएशन एंड रिलेटिव सब्जेक्ट वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना जो भी रियलिटी है, जो रियल या प्रैक्टिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ डीलिंग चेंजिंग एनवायरमेंट एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। देन नो परमानेंट नॉलेज और सब्जेक्ट, अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस तरह का सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के लिए बोला। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म ने क्या बोला, सब्जेक्टिव मीन्स नॉलेज जो भी या फिर हम लोग प्रिफर करेंगे उसमें द स्टूडेंट्स या फिर द पर्सन शुड बी गिवन पर्सनल चॉइस को इंपॉर्टेंस दिया गया। फ्रीली चूजन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन, कल्टिवेट पर्सनल चॉइस को डेवलप करना, सेल्फ डेफिनेशन या फिर सेल्फ आइडेंटिफाई एक स्टूडेंट में करना, नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडीशन, एक्ट्स ऑफ चूजिंग। एंड सब्जेक्ट में हम लोग देख सकते हैं चॉइस इन सब्जेक्ट मैटर, इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट हो, इमोशनल, एस्थेटिक, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट, that type of subjects should be included in the existentialism. So with this chart you will able to differentiate and see the similarities, and which will helpful for you all. I hope you all have understood.